So we are into this BK expression today, and we have our another 3 family members who will be expressing themselves. Hello. And yes, sir. So although we know all of them, but to know a little bit in detail about them may not be in that detail, because I have requested them also to say something about themselves, their life journey, and later on journey at BK Birla College. So for that, I request Squadron Leader Neetu Thapiyal Madam to please introduce all 3 of them, because they are part of her team. A very good evening, everybody. It's a pleasure to be introducing all 3 members, speakers of the day for the expression series today, Mr. Chalke, Mr. Chako, and Yogesh Kene. I've been working with all 3 of them in close coordination, and they're excellent team members. I hope I'm audible. Am I audible? Yes, madam. Yes. So to start with, I'll first talk about Mr. Chalke. Mr. Chalke has been had a very successful tenure with the army, and after retirement he worked with Centurion, and he's now working with the BK Birla College for less than a year. He'll be completing 1 year in June now, and he is a very sincere person, very hardworking person, very calm, composed, and he's an asset for the college as well as for our team. And I would like to say, when Mr. Khamkar was retiring, we wanted somebody to replace him. And when I discussed the matter with Brigadier Thomas, he said, I have somebody in mind. And when the person joins, you will not have any problems with security. So that speaks volumes about Mr. Chalke, because he had been working under Brigadier Thomas, and yes, from the time he's joined, he's been an asset to the college as well as to me as a team member. Talking about, I'll not talk much about them because they'll be telling about themselves, about their stories subsequently in the expressions. Talking about Mr. Chako. Mr. Chako has been with the college for more than 3 years now. And prior to, he also had a successful career with the army. And he worked for some time in Mumbai with the Mumbai Museum, and subsequently he's joined BK Birla College. He joined much before he joined much before I joined the college. Mr. Chako is also a very sincere and very hardworking person. All of you must have seen him running about all the time, getting most of the tasks done for the college, be it the college function or day-to-day activities. I think every individual must have approached him for some work or the other. Any task given to Mr. Chako, it is for sure that it will be done. He's always there saying yes with a smile. So yes, he's a very important member of my team, and I wish him all the best for the expression series today. Talking about Yogesh Kene from the civil team, again, he's there always with a smile, and any task I think given to him, is. I think I must say I'm really fortunate to have such team members because your own work becomes very easy because most of the task is achieved by them. So yes, Yogesh is, he's a very hardworking person. Works civil, it's very difficult to keep everybody happy. There are so many. He looks after the maintenance activities of the college. So there is some kind of seepage, leakage, somewhere or the other. There will be some breakage, but he ensures that most of the complaints that are told to him, they are addressed on time. So yes, he's doing an excellent job, and he has to strike a balance between the civil team from Century and the college, but he does an excellent job. So, and he's always there with a smile. So I wish all the 3 members all the best for the expression series, and I must say all 3 members are an asset to the college. And they are excellent team members. I think I'm truly blessed and fortunate to have them in my team. So now I hand over to Mr. Chalke to speak about his journey. Thank you so much. Yes, good afternoon, sir. Respected Sri Subudh sir, respected Dr. Naresh Chandra sir, Director Education, Birla College, Kalyan. Dr. Avinash Patil sir, Principal, Birla College, Kalyan.
डॉक्टर हरीश दुबे सर, प्रिंसिपल नाइट कॉलेज एंड एनसीसी ऑफिसर नेवल बटालियन, मुंबई महाराष्ट्र। डॉक्टर सपना समेल मैडम, वाइस प्रिंसिपल बिरला कॉलेज। डॉक्टर बिपिन चंद्र वाडेकर सर, बिरला कॉलेज, वाइस प्रिंसिपल बिरला कॉलेज। डॉक्टर स्मिता गुप्ता मैडम, वाइस प्रिंसिपल बिरला कॉलेज, और सभी बिरला कॉलेज के टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। मैं सूबेदार मेजर ऑनररी कैप्टन, आर्मी रिटायर्ड, सकाराम शंकर साळके। मैं मराठा रेजिमेंट से ताल्लुकत रखता हूँ। मेरी एनरोलमेंट 10 अक्टूबर 1980, रिटायरमेंट 1 सितंबर 2012, टोटल आर्मी सर्विस 32 इयर्स। सबसे पहले ट्रेनिंग के बाद मैं 3 साल के लिए पीटी एज पर दी पीटी इंस्ट्रक्टर रहा हूं। मेरी पीटी कोर्स, फिजिकल ट्रेनिंग कोर्स पूना वानवड़ी में किया है, और मेरा लॉन्ग कोर्स एएसपीटी आर्मी फिजिकल ट्रेनिंग पूना राम टेकड़ी में किया है। मेरी एक ग्रेडिंग है, और उस वजह से मैं 3 साल एज पर अपने रेजिमेंट सेंटर में रिक्रूट ट्रेनिंग में इंस्ट्रक्टर रहा हूँ। पहली पोस्टिंग मेरी मिजोरम 1 साल के लिए, फिर नागालैंड मणिपुर 2 साल के लिए। वहाँ पर बहुत कठिन परिस्थिति थी उस समय वहाँ पर जो बोडो या लाल डेंगा का पार्टी था, उग्रवाद बहुत चल रहा था, और उस समय हमारे बटालियन को लाइन ऑफ कंट्रोल बांग्लादेश के बॉर्डर में रहना पड़ा। उस समय रहते हुए कुछ कठिन परिस्थिति से सामना करना पड़ा। उसमें हमारे कुछ एक जवान को हानि पहुंची, और बटालियन ने बहुत सारा अच्छा काम किया, बहुत सारे उग्रवादी पकड़ के लिए। उसके बाद मेरी पोस्टिंग 1986 में पूना आउन कैंप में हुई, जो कि बटालियन 3 साल फिल्ट्रेशन, कठिन फिल्ट्रेशन में रहते हुए उनको बटालियन को एक अच्छा स्टेशन दिया गया, जो कि पूना आउन कैंप में हमको मिला। वहाँ पर एक सबसे अच्छा हमको सीखने के लिए मौका मिला, जो कि एक ट्रेनिंग चली थी, उसका नाम था त्रिशक्ति। उसमें आर्मी, नेवी और एयर फोर्स की जॉइंट ट्रेनिंग थी, और 3 महीने के लिए ट्रेनिंग चली, जो कि आंध्रा रायचूर से स्टार्ट हुई थी, और आंध्रा से रायचूर से होते हुए कर्नाटक होते हुए बेलगाम से होते हुए वो ट्रेनिंग महाराष्ट्र के पुणे में खत्म हुई, जो कि ड्यूरेशन उस ट्रेनिंग का 3 महीने का था। उस ट्रेनिंग के दौरान बहुत कुछ हमको सीखने के मिला। उसमें नेवी के साथ भी हमको ट्रेनिंग करनी पड़ी, एयरफोर्स के साथ ट्रेनिंग करनी पड़ी, हमारे आर्मर्ड टैंक के साथ हमको ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग एंडिंग करनी पड़ी। उससे हमको अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ, और उस ट्रेनिंग के पाने से हमको आगे वाला स्टैंप ठीक से मिला। उसके बाद पुणे में हम आए थे पुलिस स्टेशन में अच्छा काम चल रहा था, और कुछ एक आर्मी शांति सेना करके हमको श्रीलंका में जाना पड़ा। तो जून 1987 में हमारी बटालियन 2nd मराठा काली 5वीं एक मराठा रेजिमेंट में सबसे सीनियर बटालियन, जिसका जन्म ईस्वी सन 1768 में हुआ, 1768। आज तकरीबन 257 ईयर्स पुरानी पलटन है, और ये पुरानी पलटन में हमें नौकरी करने का एक सुवर्ण मौका मिला, और
वो बटालियन को पुराने होने के कारण जब शांति सेना को भेजा गया तो हमारे मराठा रेजिमेंट से 3 बटालियन का नाम पहले आया, जो कि फर्स्ट बटालियन जंगी पलटन फर्स्ट मराठा जापना में भेजी गई। मेरी सेकंड मराठा जिसको काली पाचवी के नाम से जानी जाती है, वो बटालियन को बटिकुला डिस्ट्रिक्ट श्रीलंका में भेजा गया और रॉयल बटालियन 5 मराठा को जापना में भेजा गया। ये मराठा रेजिमेंट की पुरानी हिस्ट्री देखकर हमको श्रीलंका में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भेजा, जो कि मेरे यूनिट की हिस्ट्री में यानी 257 साल की हिस्ट्री में 22 बैटल ऑफ ऑनर प्राप्त की हुई सम्मानित बटालियन है। इस बटालियन में हम अपने बटालियन में हमेशा गर्व करते हैं। जब तक हम जिंदा है और हमारे बटालियन का नाम हम कभी भूल नहीं सकते। और जो हम एक सिपाही रिक्रूट ट्रेनिंग करके सिपाही करके हम मेरे बटालियन में सेकेंड मराठा में गया और वहाँ से 32 साल नौकरी करके सिपाही से सूबेदार मेजर ऑनर कैप्टन में रिटायर्ड हुआ। ये मेरे बटालियन के खासियत पुराने लोगों की गाइडलाइन और परिश्रम, अच्छी गाइडलाइन मिली, अच्छी ट्रेनिंग पाई, उस वजह से उस बदौलत मैं यहाँ तक पहुँच सका हूँ। मैं रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। मेरा एजुकेशन एसएससी पास और एसएससी पास करके मैं रिक्रूट ट्रेनिंग में बेलगाम में भर्ती हुआ और एसएससी पास होते हुए मैं यहाँ तक पहुँचा। ये मेरे अधिकारी जो भी थे उनकी बहुत मेरे ऊपर आशीर्वाद होगा, जहाँ तक मेरे को यहाँ तक उन्होंने पहुँचाया। मैं 4 साल बटालियन का सूबेदार मेजर रहा हूँ और बहुत सारे कोर्सेस भी मेरे पास है, जो कि फिजिकल ट्रेनिंग कोर्स मेरे पास है, एक्स ग्रेडिंग। उसके बाद मेरे पास यूएससी कोर्स है, ऑन कम्बैट कोर्स, गुंतम गुंता की लड़ाई में ईस्टर्न कमांड बराकपुर कोलकाता में शॉर्ट कोर्स किया था। वहाँ पर पूरे आर्मी के 25 कैडेट्स आए थे। उसमें सिलेक्ट होकर मैं राम टेकड़ी आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग में लॉन्ग कोर्स में आया। वहाँ पर भी मेरी ग्रेडिंग अच्छी लगी, अच्छी मिली, बहुत परिश्रम करके, क्योंकि ये सब कुछ अपने बटालियन के रेजिमेंट के नाम के लिए हमको करना पड़ता है। और हमने उनको कभी भी कोई भी कोर्स के लिए डिटेल किया तो अपने रेजिमेंट का बटालियन का नाम को कभी हमने टप्पा लगने नहीं दिया। कोशिश किया है कि वो अच्छा से अच्छा ग्रेडिंग लाकर अपने बटालियन का नाम ऊंचा रखा है। उसके बाद मैं इंडियन आर्मी देहरादून में ड्रिल कोर्स किए। मेरा ड्रिल कोर्स में इंस्ट्रक्टर ग्रेडिंग है। वहाँ पर भी मैंने अच्छा मेहनत करके अच्छी ट्रेनिंग पाई और मैं अपने रेजिमेंट सेंटर में एज पर ड्रिल इंस्ट्रक्टर 3 साल के लिए पोस्टिंग काट चुका हूँ। दूसरी बात सर, मेरी रिटायरमेंट होने के बाद जब मैं रिटायरमेंट परेड में अपने सेंटर में 45 डेज के लिए भेजा जाता है, कहीं भी रेजिमेंट में नौकरी करने से लास्ट जो रिटायरमेंट होता है, उस रिटायरमेंट के दौरान हमको अपने रेजिमेंट सेंटर में ही रिपोर्ट करनी पड़ती है, जो कि ड्यूरेशन 45 डेज का हमको रहना पड़ता है। उस समय मेरे एक दोस्त थे 12 मराठे के सूबेदार मेजर, तो वो मेरे को रिटायर होने के बाद मेरे को बेलगाम में मिले। तो उन्होंने मेरे को बोला था कि आप रिटायरमेंट के बाद क्या करोगे, कहीं जॉब करोगे, कहाँ सेटल है? तो मैं बोला कल्याण में मैं सेटल हूँ, वैसे तो रत्नागिरी का हूँ, कहीं जॉब मिल जाएगा तो करना पड़ेगा, करेंगे। तो उन्होंने मेरे को ये बता दिया कि मैं भी कल्याण में सेंचुरियन कंपनी जो शाड़ में है वहाँ पर इंटरव्यू ले गया था और अच्छी कंपनी है और आप भी कल्याण में रहते तो आप उधर अगर आपको चांस मिलता है तो उधर ट्राई कर लो। मेरे एक पहचान के साहब है जो 12 मराठे के साहब थे, श्रीकांत पाटिल साहब, सब जानते हैं। उन्होंने तकरीबन सेंचुरी कंपनी में 12 साल सिक्योरिटी ऑफिसर का ड्यूटी किए हैं। तो उन्होंने मेरे सामने उनको फ़ोन लगा दिया, पूछा कि आपने सेंचुरी कंपनी में कोई ऐसे खाली सुपरवाइजर के लिए जगह है? तो बोला ये अपने एक मराठा रेजिमेंट सेकंड मराठे के साहब है जो रिटायर होने जा रहा है, तो उनके लिए है, तो हम बात करते, आप करोगे तो ठीक है। उन्होंने बोला एक हमारे थापा साहब है और उनके रिटायरमेंट आ रहे हैं, वो फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं, तो एक जगह खाली होने वाले है,
अगर उनका बायोडाटा आप भेज देते हैं, इंटरव्यू में भेज देते तो आप तुरंत भेज दो तो आपका काम हो जाएगा। मैं तुरंत अपना बायोडाटा भेजा और रिटायरमेंट होने के बाद 1 सितंबर रिटायरमेंट हुआ। 4 सितंबर को मैं सेंचुरी कंपनी में आया। उस समय हमारे सिक्योरिटी के मैनेजर साहब आरपी जोशी साहब थे, सॉरी आरपी सिंह साहब थे, और उनका इंटरव्यू हुआ। उसके बाद मेरे को ब्रिगेडियर गोस्वामी साहब का इंटरव्यू हुआ। फिर मेरे को दूसरे दिन बुलाया। उस समय एचआर साहब अपने पीके रिंगिया साहब थे, उनका इंटरव्यू हुआ। और उनका इंटरव्यू के बाद जॉइंट प्रेसिडेंट अपने श्री सुबोध दवे साहब का इंटरव्यू होगा और मेरे को अपने कंपनी में ज्वाइन होने का सुवर्ण मौका मिला। मैं 1 अक्टूबर 2012 में इस सेंचुरी कंपनी में ज्वाइन किया। रिटायरमेंट के बाद सिविल डिफेंस में मिलजुलना काफ़ी कठिन होता है। तो सेंचुरी कंपनी में जब मैं आया तो मेरे को ऐसा कोई महसूस नहीं हुआ, क्योंकि सेंचुरी कंपनी में सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में वहाँ समय एक ब्रिगेडियर, एक कर्नल साहब, एक ब्रिगेडियर साहब, कर्नल साहब और तकरीबन 65 की स्ट्रेंथ आर्मी की थी। तो उसमें मेरे को कोई ऐसे अलग से कठिनाई झेलनी नहीं पड़ी। उन्होंने अच्छा मेरे को गाइड किया। और सेंचुरी कंपनी से में जो मुझे टास्क मिला, मैंने ईमानदारी से बेवकूफ़ी से निभाने की कोशिश की। उसमें काफ़ी टास्क मेरे को दिए गए, क्योंकि मैं 4 साल सेंचुरी कंपनी से पुलिस से जो संबंधित कार्रवाई होती, जो भी काम होते, उसने मैंने पुलिस के साथ लाइजन रखा, अच्छा मिलाप किया। छोटे मोटे केसेस हर जगह पर होते हैं, ऐसे केसेस को हमने पुलिस लाइजन के साथ मिलकर कुछ कंपनी को जितना हो सके उतना सहयोग किया। उसके बाद यहाँ बिरला कॉलेज में भी हमें कुछ टास्क कंपनी की तरफ से मिलते थे। जो भी बिरला कॉलेज में प्रोग्राम होता था, जैसे एग्जाम्पल के लिए जैसे निर्जा मैम का एक विजिट हुआ, बिरला स्कूल में हुआ था, फिर बिरला कॉलेज में आए थे, फिर उन्होंने गिरिविहार में भी उन्होंने विजिट किया था। तो उनको लाने के लिए कंपनी के तरफ से, कर्नल साहब के तरफ से, ब्रिगेडियर साहब के तरफ से या कंपनी के मैनेजमेंट के तरफ से मेरे को गाइड करके डिटेल किया। मैंने वो काम बेखूबी से निभाया है। मैंने निर्जा मैम को बिरला स्कूल में गाइड देकर यहाँ पर लाया है और फिर मैंने उनके घर तक आदित्य बिरला हाउस में उनको छोड़ा है। उसके बाद बिरला कॉलेज में राजश्री बिरला पद्म भूषण को भी मैंने एक बार लाया, जो कि अपनी नया बिल्डिंग पीछे जो काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन, उनका भूमि पूजन के लिए आए थे। उनको भी मैंने क्या गाइड करके लाया था और वापस उनको गाइड करके वहाँ तक पहुँचाया था। एक बार बैडमिंटन पट्टू ओलंपिक पीयूष सिंधु बिरला स्कूल में आए थी, उनको भी मैंने गाइड के तौर पर लाया था। और वापिस सांता क्रूज में कोई होटल का नाम नहीं याद रह रहा है, लेकिन वो 5 स्टार होटल तक मैंने उनको पहुंचा था। उनके पिताजी भी साथ में थे, तो उन्होंने भी हमको बहुत शाबाशी दी। ये काम हमने कंपनी की तरफ से बेखूबी से निभाया है। और सिक्योरिटी गार्ड से और कोई बहुत सारे टास्क मिले थे, उसको भी हमने बेखूबी से निभाया है। बिरला कॉलेज से जो वृक्ष धुंडी निकलती थी, तकरीबन 3,500 हजार की स्ट्रेंथ से स्टूडेंट, पेरेंट्स, अपने कॉलेज के स्टाफ, बहुत उसमें बैलगाड़ियाँ, यानी रोड को ओपनिंग करने के लिए पुलिस के साथ हमने काफ़ी मिलाप किया है। पुलिस में हर स्टेशन में उल्लासनगर पुलिस स्टेशन 1 में, खड़गपाड़ा में, महात्मा फुले में हमने बिरला कॉलेज की जो वृक्ष धुंडी निकलती थी उसका परमिशन के लिए मैंने बहुत कोशिश किया और पूरी स्टेट में
2 साल 2 बार जो वृक्ष ड्यूटी हुआ, 2 साल मैंने अपनी खुद के नाम की स्टेटमेंट देकर ये परमिशन लाया है और वो ड्यूटी काफी सफलतापूर्वक पार हो गई है। क्योंकि जब यहाँ से इतनी सारी ट्रेन जाती थी तो ये शार्ड का ब्रिज में काफी कठिनाई आती थी, बारिश के दिन रहते थे। लेकिन विठल रुक्माई मंदिर में जाते तो वो भी भगवान ने हमको वृक्ष ड्यूटी के समय, दोनों बार वृक्ष ड्यूटी के समय, वो उस समय ड्यूटी पहुंचने तक को बारिश को रोक दिया, धूप भी गिरा और बच्चों का जो सफर था बिरला कॉलेज से लेकर बिरला मंदिर विठल रुक्माई का वहाँ तक आषाढ़ी एकादशी के दिन तो अच्छा सफर रहा, उसमें मेरा योगदान था। मैंने काफ़ी पुलिस ट्रैफिक के साथ, पुलिस के साथ मिलाप करके रोड को, ट्रैफिक को खाली करने के लिए रिक्वेस्ट किया। हमारे कर्नल साहब ने रिक्वेस्ट किया, ब्रिगेड साहब ने किया, मैनेजमेंट में काफ़ी सपोर्ट किया। तो ये मेरी सेंचुरी कंपनी के रहते हुए मैंने ये काम किए हैं और सेंचुरी कंपनी से मेरी रिटायरमेंट यानी 2012 अक्टूबर 2012 से मैंने अप्रैल 30 अप्रैल 2021 तक मैं कंपनी में 8.5 साल नौकरी किया और 30 अप्रैल को मैं वहाँ कंपनी से रिटायरमेंट हो गया। उसके बाद रिटायरमेंट के बाद कर्नल साहब, ब्रिगेड साहब ने एक बार मुझे बुलाकर पूछा कि आप घर में जाकर क्या करोगे, क्या अभी क्या करोगे, गांव में जाओगे, इधर रहेंगे? मैं तो गांव में भी जाऊंगा, इधर रहूंगा, आना जाना करूंगा। तो बोला एक वैकेंसी है आपको, हम बिरला कॉलेज में डिटेल कर रहे हैं, तो आप बिरला कॉलेज में खामकर साहब की बदली करना है अपने। तो मैंने बोला ठीक है सर। बिरला कॉलेज में मैंने यहाँ आया, खामकर साहब की बदली किया। नीतू मैडम से मेरी इंटरव्यू हो गई। नीतू मैडम ने मेरे को अच्छी गाइड लाइन दी, अच्छा समझाया टूटी के बारे में, सिक्योरिटी के बारे में, कॉलेज के बारे में। लेकिन नए जगह पर तुरंत समझना मुश्किल हो जाता है क्योंकि मेरा पूरा स्टाफ तो पहचान का नहीं था, या कि रूटीन मालूम नहीं थी, या के आने वाले पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, विजिटर के बारे में जानकारी मैंने ली। 1-2 महीना मुझे थोड़ी सी तकलीफ हुई, उसके बाद मेरे को ऐसा कोई तकलीफ महसूस नहीं हुआ क्योंकि ये सिक्योरिटी कोई इतनी हमें कठिनाई नहीं लगती है क्योंकि हमने बहुत सारी ड्यूटी इसमें की है और सेंचुरी कंपनी में मैंने 8.5 साल निकाला है। तो इसलिए थोड़ा सा नए जगह पर मुझे थोड़ी तकलीफ हुई। मैं इधर आया, मेरे को डायरेक्टर साहब ने भी 1-2 बार बुलाया, मेरे छोटी मोटी गलती होती है उसको समझाया, अगर कोई प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट आकर मेरे पास मिलो, मुझे पूछो, बताओ। तो मैंने बोला ठीक है सर, कोई गलती हो या कोई मेरे को जरूरत पड़े तो मैं आपके पास जरूर आकर आपसे मैं गाइडलाइन लूँगा। तो बिरला कॉलेज में भी मुझे कोई अभी तक कोई ऐसे कठिनाई नहीं आई। मैं कोशिश करता रहा कि जब मैं सेंचुरी कंपनी में था तो कुछ एक केसेस मैंने देखी है, तो बिरला कॉलेज से कुछ एक केसेस उधर कर्नल ब्रिगेड साहब के पास पहुंच जाते थे अपने गार्ड के बारे में, गार्ड का डिसिप्लिन है, गार्ड कुछ काम ठीक नहीं कर रहे वर्बली। तो वहाँ पर मैं हमेशा मेरे पास, मैं भी उधर सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर का 1 साल ड्यूटी किया, उस दौरान भी कुछ केसेस आए तो कर्नल साहब तक मैं भी उनके साथ जाता था, मैंने देखा। और जब मैंने इधर कॉलेज में आया तो मैंने एक सोच लिया था कि घर की बात बाहर जाना नहीं चाहिए। छोटी छोटी चीज़ के ऊपर अगर कर्नल साहब, ब्रिगेडियर साहब और अपनी कॉलेज छोड़कर बाहर जाए तो फिर ड्यूटी करने में कोई मज़ा नहीं है। तो मैंने यही आने से पहले यही दिमाग में रखा कि यहाँ की कोई भी चीज़, कॉलेज की, अपनी घर की चीज़ बाहर नहीं जानी चाहिए। वो कंपनी और कॉलेज कोई अलग नहीं है, एक ही है। लेकिन तभी भी जहाँ पर हम काम करते हैं, ड्यूटी करते हैं, वो ड्यूटी में छोटी मोटी समस्या होती रहती है, वो समस्या को बखूबी से निभाया है। और आज तकरीबन अभी आने वाले 1 जुलाई को मेरा 1 साल हो जाएगा। 1 साल के अंदर बिरला कॉलेज से सिक्योरिटी के साइड से कोई भी एक भी केस, एक भी कोई रिपोर्टिंग कर्नल साहब और ब्रिगेडियर साहब के पास
मैंने जाने नहीं दिया। जो भी प्रॉब्लम हल करना है तो अपने नीतू मैम है, वो हमारे सीनियर है, वहाँ तक कि हमने उस छोटे मोटे चीज़ को सॉल्व किए हैं और ऐसी कोई घटना नहीं जो कि कंपनी तक जाए और कंपनी से उसका डिसीजन मिले। तो ये काम मैंने किए है और आगे भी मैं यही सोच रहा हूँ कि यहाँ का सिक्योरिटी अच्छी रहे, क्योंकि सिक्योरिटी लोगों के दिमाग, ये लोग सोचते हैं कि सिक्योरिटी कोई इतनी कोई अहमियत नहीं रखती, लेकिन मैं अपनी सोच से सोचता हूँ कि सिक्योरिटी डिपार्टमेंट चाहे बहुत इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है, क्योंकि सिक्योरिटी डिफेंस ये बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर डिफेंस नहीं है, खेती कितनी भी लगा दो, कुछ भी कर लो, लेकिन उसका अगर फेंसिंग नहीं है, उसको डिफेंस नहीं है, रुकावट नहीं है, तो खेती रहती नहीं है। उस मुताबिक सिक्योरिटी है, जितने हम सिक्योरिटी को वैल्यू या जो समझ देते नहीं है वो नहीं है, क्योंकि एक सिक्योरिटी के ऊपर, चाहे वो कंपनी हो, कॉलेज हो, चाहे कुछ भी हो, वो सिक्योरिटी के ऊपर बहुत अहमियत रखती है कि उसकी सुरक्षा सिक्योरिटी करती है। और मैं सिक्योरिटी को इससे आगे भी अच्छा बनाने का कोशिश करूंगा, कोशिश रहेगी। कोई आपस में आने वाले पेरेंट्स, स्टूडेंट्स या विजिटर्स आते हैं, उनकी मेरी सिक्योरिटी की तरफ से बातचीत अच्छी हो, उनको कोई ठेस ना पहुंचे, दुख ना हो, रिस्पेक्ट करे सबकी, यही सोचूंगा। और आर्ट फीडबैक में जैसे मैंने देखा है, हमारे सिक्योरिटी गेट से कोई विजिटर आते, कोई बाहर कॉलेज के, स्कूल के टीचर, प्रिंसिपल आते, हम रिक्वेस्ट से उनसे बात करते हैं, सॉरी सर आई प्लीज आपका नाम बताए, मोबाइल नंबर बताए, गेट पास बनाना पड़ेगा। तो बोलते बहुत अच्छी चीज़ है कि आप कहीं और कॉलेज में ये चीज़ नहीं होते, कोई गेट में पूछता तक नहीं है, लेकिन ये कोई मैंने इस रूटीन को बनाया ऐसे नहीं है। ये बिरला कॉलेज की एसओपी, बिरला कॉलेज बहुत पुरानी कॉलेज है, बहुत पुरानी सिक्योरिटी है। और हमारी जो स्क्वाड्रन लीडर नीतू थापेल मैडम है, इन्होंने उनको मजबूत बनाया है। उनके पीछे तो पहले जो सिप्रा मैडम थी, उन्होंने भी उनको सिक्योरिटी को मजबूत बनाया है। तो ऐसी कोई दिक्कत ना आती। लेकिन जब कोई सर आते हैं, हमसे मिलते हैं, बोलते हैं, तो बोलते हैं बिरला कॉलेज की सिक्योरिटी अच्छी है, पूछताछ करती है, और ये जरूर है। हमें रोका करके हमें बुरा नहीं लगता, हमें अच्छा लगता है। तो हम उनको थैंक यू बोलते हैं सर। और बाकी मैं अगला जो मेरा एक सोच है वो कि सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से कोई गलत काम ना हो, सिक्योरिटी कोई गलती करे और कॉलेज का नाम उसमें आए, मैं ध्यान रखूंगा कि इस सिक्योरिटी के लिए कोई ऐसा गलत काम ना हो। बाकी सर, मेरे को इस प्लेटफॉर्म में बात करने का आपने मौका दिया, मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रगुजार हूँ। मैं मेरा जो अपने 4 शब्द बोलने का मौका दिया उसको मैं खत्म करता हूँ। जय हिंद सर। धन्यवाद चालके साहब। थैंक यू सर। शहीद भगत सिंह की एक पंक्ति है कि मरकर न मिटेगी वतन की ये उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वतन आएगी। तो ये जज्बा रखने वाले हमारे चालके साहब और जीजी चाको साहब आज हम लोगों के बीच है। सो इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट सेटिस्फैक्शन। और आप दोनों की वजह से ही आज बिरला कॉलेज का कैंपस इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर्ड कैंपस। जो लोग आते हैं कॉलेज की ब्यूटी, ग्रीनरी वगैरह देखकर दे गेट सो इम्प्रेस्ड। सो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ देम। सो अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मिस्टर जीजी चाको को कि वो अपने अभिप्राय रखें। Okay, good evening all. Respected Vice Chairman Sir, Director Education Dr. Naresh Chandra Sir, Principal Dr. Avinash Patel Sir, and Principal Harish Dubey Sir, and all Vice Principals and teaching staff, and Neetu Ma'am, and my subordinates.
ओके, मैं रिटायर्ड सूबेदार चाको केसी कि व्हेन आई वाज इन 19 तो मैंने आर्मी में ज्वाइन किया था। ज्वाइन करने के बाद मैंने 26 ईयर्स मैंने आर्टिलरी इसमें काम किया है, जिसमें जो बॉफर्स है, जो वार का जो है सबसे बैकबोन वो आर्टिलरी होता है, जिसमें जो मिसाइल्स होते हैं। तो उसमें मैंने ऑपरेटिंग किया है, जिसमें मेरी अंडर में 18 गन्स आता है। उसके मैंने फायरिंग कंट्रोल में करता था, उस पर ट्रूप लीडर, एज ए ट्रूप लीडर। आफ्टर दैट जो कम आदमी को मौका मिलता है जिसकी फॉरेन सर्विस करने का, जो मैंने फॉरेन सर्विस मेरी 3 इयर्स जब सर्विस में था तब मैंने फॉरेन सर्विस किया है। आफ्टर दैट मैंने ट्रेनिंग सेंटर जो है हैदराबाद की, जो आर्टिलरी ट्रेनिंग सेंटर इंस्ट्रक्टर है, उसमें मैं इंस्ट्रक्टर रह चुका हूँ। वहाँ पे अपनी जितने भी जो काम मुझे मिला है कि वहाँ पर भी मैंने बहुत अच्छे से किया है। तो जो सब दिखता है लोगों को। और उसके बाद अपने 1999 में जो है कारगिल वार में मैंने जम्मू में रहा है, जो कारगिल वार हमने अटेंड किया है। और उसके बाद मेरी जो एक्चुअल जो कोर्समेट है, जो परमवीर चक्र सूबेदार मेजर विजेंद्र सिंह, ये मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड है। वो हम दोनों एक ही साथ कोर्समेट था, जो अभी भी वो जिंदा है, जो लास्ट अमिताभ बच्चन के साथ कौन बनेगा करोड़पति में इंटरव्यू में आया था। और उसके बाद मैंने मेरी सर्विस 26 इयर्स खत्म करने के बाद 2 मई 2019 में मैंने यहाँ पे ज्वाइन हुआ है अंडर मेजर शिप्रा कि मैम के अंडर में मैंने 2.5 मंथ्स मैंने काम किया है। उसके दौरान तो मैम ने मुझे सबसे पहले ये काम दिए थे छुट्टी जाने से पहले कि मुझे इवैक्यूएशन IT बिल्डिंग का प्लानिंग बना। मुझे सिर्फ जो है मैं योगेश खेने को जानता था और कॉलेज में मैं किसी को भी नहीं जानता था। जो मैंने कहने की हेल्पिंग से पूरा ड्राइंग निकाला, IT बिल्डिंग की इवैक्यूएशन प्लानिंग मैंने बनाया उसको। और उसके बाद देन हमने पिजन का जो है प्रोटेक्ट नेट से, एल्यूमिनियम नेट से, वो मेरी प्लानिंग में बना है, जो आज भी वो IT बिल्डिंग में हमने लगा चुका है। आफ्टर दैट जो मेजर शिप्रा मैडम ने, ये इज द फर्स्ट लेडी की मैनेजर एडमिन एंड सिक्योरिटी का, जो जिसने फाउंडेशन यहाँ पे खड़ा किया है। तो मैम ने काफ़ी अच्छा काम की, जो स्टार्टिंग काम मैम ने की। उसके बाद नीतू मैम आने के बाद हमारे काम जो है बहुत स्मूथली चला है। जो नीतू मैम मुझे फुल्ली सपोर्ट किया है, मैं भी मैम के साथ हूँ हर काम पे। उसके बाद जितने भी जो हैंड पॉट्स का जो पेंटिंग्स है, जो यूनिफॉर्मिलिटी है, जो आपको सामने दिखता है, और उसके बाद जो स्क्रैप ग्रिल्स है, जिसमें हमने हर जगह में जो है ग्रिल्स, स्क्रैप ग्रिल्स के ऊपर हमने पॉट्स वगैरह हैंगिंग करके रखा है। उसके बाद अपना लॉन मोवर मशीन हमने खरीदा है, फ्लोरिंग मशीन हमने खरीदा है, वैक्यूम क्लीनर अपने पास है। क्यों, हम कहीं किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने सबसे पहले प्लानिंग किया था जब मैं यहाँ पे आया था, तो मुझे अपने पास लोन मोवर मशीन नहीं था। मैंने 2-3 बार मैं सेंचुरी में गया था मांगने के लिए, वो बोला कि मैं आज दूंगा कल दूंगा। सो दैट मुझे वो अच्छा नहीं लगा, क्योंकि किसी से मांगना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। उसके बाद हमने प्लानिंग किया, नहीं हम यहाँ पे आने के बाद फिर हमने नीतू मैम से डिस्कस किया कि हम ये है सामान यहाँ पे लेंगे। तो सारे अपना आइटम्स हमने यहाँ पे लिया हुआ है, तो वो अपने सामने सब क्लियर है। उसके बाद अपना जो है वाटर सेंसर, जो सिक्योरिटी पहले ऑन ऑफ करता था, वो जो वाटर का जो सेंसर है टैंक क्लीनिंग का हमने लगा चुका है। और उसके बाद फायर हाइड्रेंट का जो है स्मोक डिटेक्टर जो भी है, ये सब नीतू मैम आने के बाद ही अपना प्लानिंग से सब हुआ है जो सबको। उसके बाद अपना लैंडस्केपिंग हमने जहाँ पे जो अपना ऑफिस के सामने जो लैंडस्केपिंग किया है, साइड में जो स्टूडेंट जो पार्किंग है वहाँ पर भी हमने ग्रीनरी किया हुआ है। तो कई लोग बोलता है कि जो यहाँ पे आता, तो कई लोग हमें बोला है कि पहले जैसा नहीं रहा कॉलेज अभी देखने में, कि बहुत ब्यूटीफुल है। क्योंकि मुझे काफ़ी जगह से ये फीडबैक मुझे आ चुका है, कई लोग मुझे बोल चुके हैं कि एवरीवन्स की वे ऑफ डिफरेंस है वर्क का। कई ज़्यादा करता है, कोई कम करता है, लेकिन इतना है कि अगर कम भी करो काम अपने ढंग से करो। तो फिर मुझे इतना ही है। और अपना जहाँ पे अपना यहाँ पे जब यहाँ ज्वाइन होने के बाद मुझे बहुत कुछ
सीखने को मिला है जो कॉलेज से है कि वो मैं कभी जिंदगी में भूल नहीं पाऊंगा, क्योंकि आप यहाँ पे जितने भी जो मीटिंग्स है, IQAC मीटिंग्स वगैरह आता है, उसमें अपना टेबल का हमने डेकोरेशन कैसा करना है, बाकी ये सब कुछ हम लोग ने प्लानिंग में, मैं और नीतू मैम वगैरह प्लानिंग में ये सब कुछ किया हुआ जो सबको सामने दिखता है। जो फ्लैग्स है, हमने पंजाब से भी फ्लैग्स मंगाया जो एम्ब्रॉयडिंग का है, ये सारे जो है आपका हर फंक्शन में हमने जो सामने लगे, सो दैट वो अपना कॉलेज की ब्यूटिफिकेशन को भी वो थोड़ा इम्प्रूवमेंट करता है। देन बाकी ऑल और कुछ नहीं है मुझे बोलने में, और आप इस अपॉर्चुनिटी मुझे दिया कि एवरीवन, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू चाको साहब। सही बात है, ये जो भी इम्प्रूवमेंट एंड डेवलपमेंट हो रही है ये डेफिनेटली आप लोगों के सहयोग से ही हो रहा है। एंड हम लोग भी कॉलेज को लगभग 40 साल से देख रहे हैं और धीरे धीरे कितना ड्रास्टिक चेंज कॉलेज के हर फील्ड में आया है। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ एवरीबडीज एफर्ट। सो ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द टीचर्स, administrative staff and students, we extend a lot of thanks to both of you. Now I request Mr. Yogesh Kene, जो कि घर बनाते हैं लोगों के, इनके बिना बोलते हैं ना, एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है, एक ईंट नहीं हिल सकती है। तो ऐसे योगेश केने आज हमारे बीच में है, और योगेश केने का भी काफी लंबा एसोसिएशन रहा है बीके बिरला कॉलेज के साथ, और अक्सर मुस्कुराते हुए दिखते हैं, आज भी मुस्कुरा रहे हैं। तो मैं मिस्टर योगेश केने से निवेदन करूंगा कि आप ऐसे ही मुस्कुराते हुए अपने एक्सप्रेशन दें। थैंक यू सर। रिस्पेक्टेड दवे सर, वाइस चेयरमैन नरेश चंद्र सर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल अविनाश पाटिल सर, नाइट कॉलेज प्रिंसिपल हरीश दुबे सर, अँड ऑल वाइस प्रिंसिपल अँड माय कलिग्स. मी मराठीतच बोलतो. टाळके सर आणि चाको सर हिंदीत बोलले, मला मराठीमध्ये कम्फर्टेबल बोलता येईल. खरं तर मला भीती वाटते खूप बोलायला. आज मी पहिल्यांदा बिर्ला कॉलेजमध्ये कुठल्या तरी याच्या समोर बोलत असणार. मला खूप भीती वाटते खरं म्हणजे काय बोलायचं आणि काय नाही, सुचत पण नाही मला काय बोलायचंय. मी 26 डिसेंबर 2016 मध्ये सेंच्युरी रेवॉन मध्ये ॲज अ BTC ट्रेनिंग इंजिनियर म्हणून जॉईन झालो. 2010 मध्ये मी 10वी पास केली, 2013 मध्ये डिप्लोमा, 2016 मध्ये BE सिव्हिल इंजिनियर म्हणून पास आउट झालो. या जे 6 वर्षाचा काळ आहे, या काळामध्ये मी छोटे मोठे जॉब करायचो. ठाण्यामध्ये, डोंबिवलीमध्ये, उल्हासनगरमध्ये साईट सुपरवायझर, साईट इंजिनियर म्हणून. कुठे डिझायनिंगचा जॉब करायचो, ऑटोकॅडवरती जे डिझायनिंग करतात त्याच्यामध्ये जॉब करायचो. पण कुठे चांगला जॉब नव्हता भेटत असा. जसा आपला हा बिर्ला कंपनीमध्ये जो जॉब आहे, बिर्ला कंपनी ब्रँड आहे, असा जॉब कुठेच नव्हता भेटत. माझे आजोबा ते पण सेंच्युरी मध्ये कामाला होते, रिटायर झाले. ते सेंट्रल वर्कशॉपला ॲज अ टर्नर म्हणून कामाला होते. माझे वडील अरुण केणे हे पण आता सेंच्युरी मध्ये कामाला आहेत, रेवॉन मध्ये कामाला आहेत. ते ॲज अ टर्नर फिटर म्हणून कामाला आहेत आता. तर वडील बोलले सेंच्युरी मध्ये आपण बघू, BTC इंजिनियर मध्ये आपण प्रयत्न करून बघू, एकदा झालं काम तर तुझं झालं. वडिलांनी ऍप्लिकेशन भरून घेतलं. नेगी साहेब BTC मध्ये जे इन्चार्ज आहेत त्या सरांकडे ऍप्लिकेशन दिलं. 1-2 महिन्यानंतर मला तिथनं कॉल आला का तुम्ही इंटरव्ह्यूला या ट्रेनिंग इंजिनियर म्हणून. मी इंटरव्ह्यूला गेलो तर त्यांनी मला तिथे 1 वर्षाच्या पिरियडसाठी जॉईन करून घेतलं ॲज अ ट्रेनिंग इंजिनियर. 26 डिसेंबरला जॉईन झाल्यानंतर कॉस्टिक टँक हा प्रोजेक्ट माझ्याकडे दिला होता. मी सुप्राय भट म्हणून साहेब आहेत सेंच्युरी मध्ये, आमचे सिव्हिल डिपार्टमेंटचे साहेब आहेत, त्यांच्या अंडरमध्ये मला ठेवलं होतं सुप्राय भट साहेबांच्या. एक साधारण 3-4 हफ्ते मी तिथे काम केलं असणार. त्याच्यानंतर सुनील राव साहेब, त्यावेळी GM सर होते, आता बीट्सला आहेत. सुनील राव साहेब, समीर सैनी साहेब, त्यांच्या अंडर मी कामाला होतो. तर सुनील राव सरांनी आणि समीर साहेबांनी मला सांगितलं तुला बिर्ला कॉलेजला जायचं आहे. हर्षल बियानी म्हणून माझ्या आधी ते जे सिव्हिलचं काम बघायचंय त्यांच्याबरोबर शिकण्यासाठी, त्यांना मदत करण्यासाठी जायचंय. तर मी 25 जानेवारी 2017 मध्ये बिर्ला कॉलेज या कॅम्पसमध्ये पाय ठेवला पहिल्यांदा, आणि बिर्ला स्कूल या कॅम्पसमध्ये पण. त्यावेळी बिर्ला स्कूलला ऑडिटोरियम आणि NX बिल्डिंगचा एक्सपान्शनचा प्रोजेक्ट चालू होता. तर ते प्रोजेक्टच्या वरती सुपरविजन हर्षल बियाणी सोबत मी पण करायचो. त्याच्याकडनं शिकायचो पण बऱ्याचशा गोष्टी, आणि समीर सरांच्याकडून, राव सरांच्याकडून, यांच्याकडे पण बऱ्याचशा टेक्निकल गोष्टी मला शिकायला भेटायच्या. माझ्या लाईफमध्ये मी कधीच बिर्ला फॅमिलीमध्ये प्रोग्राम इव्हेंट कसे असतात मी ऐकले होते वडिलांकडनं,
का बाबूजी येणार आहेत बिर्ला कॉलेजमध्ये, असे बरेच इव्हेंट जे व्हायचे ते मी त्यांच्याकडनं ऐकले होते. माझ्या आयुष्यामध्ये हा पहिल्यांदा म्हणजे हे सत्यात बघण्याची दिवस होता 28 फेब्रुवारी 2017 मध्ये, जेव्हा निर्जा मॅडमची व्हिजिट बिर्ला स्कूलला लागली होती. बिर्ला स्कूल, बिर्ला कॉलेज दोन्ही ठिकाणी. तर त्या व्हिजिटमध्ये मला बऱ्याचशा गोष्टी शिकायला भेटल्या. व्हिजिटचे अरेंजमेंट कसे असतात, प्रत्येक गोष्ट आपण किती छोट्या नजरेने बघितली पाहिजे, ही गोष्ट मला त्यावेळी चेअरमॅन सरांचे राऊंड व्हायचे, व्हाईस चेअरमॅन सरांचे राऊंड व्हायचे, सिव्हिल डिपार्टमेंट मधले आमचे जे सर असतील, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंटचे सर असतील, अजित पाटील, विकास विराजार सर, तर हे प्रत्येक गोष्टीकडे किती छोट्या नजरेने बघतात, ही गोष्ट मला त्यावेळी त्यांच्याकडे बघायला, त्यांच्याकडे शिकायला भेटली. व्हिजिटचा काळ झाल्यानंतर ऑक्टोबर 2017-18 मध्ये आम्ही बिर्ला स्कूलला 1 एंट्री 1 एक्झिटचा जे प्रोजेक्ट होतं ते केलं. हे प्रोजेक्टमध्ये मैथिली भागवत त्या मॅडम आमच्या हेड होत्या, तिकडे मेजर मॅम होत्या. ज्यावेळेस आम्हाला माहिती पडलं का बिर्ला स्कूलला मेजर आर्मी मधनं एक व्यक्ती कामाला येणार आहे, तर त्यावेळी आम्हाला भीतीच वाटत होती का मेजर आर्मी मधल्या लोकांच्यावर आपण नॉर्मल माणूस कसं आहे काम करणार. बाकी पिक्चर मध्ये बघितलंय आर्मीवाल्यांची विचार करण्याची पद्धत आणि आपली विचार करण्याची पद्धत खूप वेगळी, तर त्यांच्या ब्रेनला, त्यांच्या कामाच्या लेवलला आपण कसे काय मॅच करणार. पण मैथिली मॅम अजिबात तशा नव्हत्या. त्यांनी आम्हाला पूर्णपणे ह्या 2-3 वर्षांनी त्यांनी आम्हाला पूर्ण सांभाळून घेतलं प्रत्येक गोष्टीमध्ये. सेम तसंच आपल्याकडे बिर्ला कॉलेजला शिप्रा मॅम होत्या त्यावेळेस. शिप्रा मॅम पण एकदम स्ट्रिक्ट होत्या, पण कामामध्ये आम्हाला प्रत्येक गोष्टीला सांभाळून घेतलं असणार त्यांनी त्यावेळी. 1 एंट्री 1 एक्झिटचा प्रोजेक्ट बिर्ला स्कूलमध्ये संपल्यानंतर आपली ऍडमिन बिल्डिंग जी आहे तिच्यावरती 4 क्लासरूमचा एक्सटेन्शन प्रोजेक्ट होता 2017-18 मध्ये. ते त्या प्रोजेक्टमध्ये पण मला काम करायला भेटलं, तिथे मला शिकायला भेटलं. 2017 मध्ये PV सिंधू मॅडमची व्हिजिट लागली होती बिर्ला स्कूलमध्ये. त्या व्हिजिटची पण अरेंजमेंट आपल्याकडे होती. सगळे टीम मेंबर जे होते स्कूल कॉलेजमधले त्यांच्यासोबत राहून भरपूर सारं काम करायला भेटलं, भरपूर सारं शिकायला भेटलं त्यावेळेस पण. ते झाल्यानंतर शिप्रा मॅडम जेव्हा आपल्या इथे कॉलेजमध्ये हे इन्चार्ज होत्या, सिक्युरिटी इन्चार्ज, तर त्यांच्या बरोबर 1 एंट्री 1 एक्झिट म्हणजे VMS रूम असून द्या, नाहीतर जी फेन्सिंगचं आपल्या फ्रंट साईडला जे काम झालंय, स्टुडंट पार्किंग बनली असेल, स्टाफ पार्किंग बनली असेल, DP रोडच्या इकडची कंपाऊंड वॉल जी बनलेली असणार, हे सर्व कामं मी असताना माझ्या सुपरविजन मध्ये झाले असतील असं बोलू शकतो. या गोष्टींमध्ये मला भरपूर सारं शिकायला पण भेटलं का कुठलं काम कसं करायचं. ह्या सगळ्या गोष्टी नवीन होत्या. हे कुठे आपण सिव्हिल इंजिनिअरिंग करत असताना हे सगळं शिकवत नाही आपल्याला. फेन्सिंग कशी करतात, तिची अलाइनमेंट कशी करतात, तिची रुटीन कशी करतात, हे काहीच नाही शिकायला भेटत. पण हे मला इथे शिकायला भेटलं. समीर सरांच्या अंडरमध्ये, राव सरांच्या अंडरमध्ये, यांच्या अंडरमध्ये मला ही गोष्ट शिकायला भेटली. प्लस आम्ही त्याच पिरियडमध्ये CSRच्या फंडमध्ये पोटा केबिन्स मागवले होत्या मागे 2 गर्ल्स आणि बॉईज टॉयलेटसाठी, का की कॉलेजमधनं कधी पण रिक्वायरमेंट का टॉयलेटचं आपल्याकडे भरपूर शॉर्टेज आहे. तर CSR फंडमधनं आम्ही पोर्टेबल टॉयलेट्स मागवले होते 2. तर पोर्टेबल टॉयलेट्स मी फर्स्ट टाइम बघितले असणार ते कसे असतात. त्यांचं शिफ्टिंग आपल्या पार्किंग पासून, स्टुडंट पार्किंग पासून मागे घेऊन जाणं हा मोठा टास्क होता. तर आम्ही 2 हॅड्रा लावून त्यांना तिथपर्यंत शिफ्टिंग करून घेतली होती पोटा केबिन्सला. ते एक काम झालं होतं. VMS व्हिजिटर रूम जो आहे तो आपला झाला असणार. गेट्स सगळे आम्ही त्यावेळी नवीन बनवले होते. त्याच्यानंतर 2019 मध्ये जे आपली NR एक्सटेन्शनची बिल्डिंग आता चालू आहे तिचं भूमिपूजन होतं. त्याच्यासाठी पद्मभूषण राजश्री मॅडम जी बिर्ला आल्या होत्या. तर त्या पिरियडला आपले जे पण व्हिजिट व्हायचं नेहमी कॉलेजला ते फ्रंट एरियामध्ये असायचे. त्यावेळेस ती व्हिजिट बॅक साईडला होती आणि खूप सारं काम होतं त्याच्यामध्ये. पेवर ब्लॉक असतील, गार्डनिंग एरिया असेल, पेंटिंग एरिया असेल, खूप सारं काम आम्हाला त्यावेळी त्या एक 20 दिवस पण पिरियड नव्हता, 2 हफ्त्यामध्ये आम्ही ते काम पूर्ण केलं असणार त्या वेळेमध्ये. त्याच्यात पण चेअरमॅन सरांच्या छोट्या गोष्टी ज्या होत्या, त्यांचं बघण्याचं, प्रत्येक गोष्टीकडे बघण्याचा दृष्टिकोन, त्याच्यामध्ये त्यांचे ऑब्झर्वेशन असतील, त्यांचे पॉईंट्स असतील, ते आम्ही म्हणजे प्रयत्न केला, आम्ही असं बोलू शकतो प्रयत्न केला ते व्यवस्थित पार करण्यासाठी. नंतर 26 डिसेंबर 2019 आपलं NR एक्सटेन्शन बिल्डिंगचं जे प्रोजेक्ट चालू आहे ते प्रोजेक्टचा पूजा झाली, कॉन्ट्रॅक्टर फायनल झाल्यानंतर, आणि त्या बिल्डिंगचं काम चालू झालं. म्हणजे मी इंजिनिअरिंग पास झाल्यानंतर मला RCC जे काम होतं ते मला कुठे शिकायला नव्हतं भेटलं. मी जिथे पण जॉबला जायचो तिकडे प्लास्टरिंग, बांधकाम हे सगळं काम चालू असतं. मला RCC काम कुठे शिकायला नव्हतं भेटलं. तर मी इथे जॉईन झाल्यानंतर मला एक पूर्ण बिल्डिंग कशी होते, खालपासून ते वरपर्यंत कशी बनते, ते प्रत्येक गोष्टी मला एक पॉईंट शिकायला भेटला इथे जॉईन झाल्यानंतर. त्याच्यानंतर 2 नोव्हेंबर 2020
2020 मध्ये आपला प्ले स्कूलच्या प्रोजेक्टचं भूमिपूजन झालं. तिथे पण काम चालू होतं. आता आम्ही 19 एप्रिलला प्ले स्कूलची बिल्डिंग स्कूलला हँडओव्हर पण केली. तिच्यात पण भरपूर साऱ्या गोष्टी शिकायला भेटल्या. कलर्स असतील, नाहीतर छोट्या मुलांना काय कलर्स आवडणार, त्यांच्या हाईटला रेलिंग कशी लावायची, त्यांना काय लागलं नाही पाहिजे, कुठल्या मुलाच्या हाताला काय लागलं नाही पाहिजे, या सगळ्या गोष्टी आम्हाला तिथे त्या याच्यामध्ये शिकायला भेटल्या असतील. प्लस एनआर एक्सटेन्शनच्या समोर आता आम्ही स्टॅम्प फ्लोरिंग केली. हा एकदम नवीन प्रोजेक्ट होता. जो मला इकडे अल्ट्राटेकच्याकडनं जी स्टॅम्प फ्लोरिंग झाली ते एकदम नवीन होतं आमच्यासाठी. ते स्टॅम्पिंग कशी करतात हे सगळं इकडे शिकायला भेटलं मला याच्यामध्ये. प्लस STP नेटवर्कचं काम आम्ही जे केलं बिर्ला कॉलेजमध्ये, फिल्टर वॉटर सप्लाय लाईनचं काम केलं असेल बिर्ला कॉलेजमध्ये, स्कूल STP लाईनचं काम बिर्ला कॉलेजमध्ये केलेलं आहे आपण. आणि दरवर्षी म्हणजे नीतू मॅम जॉईन झाल्यापासून नीतू मॅमची सारखी कंप्लेंट असायची, वॉटर लिकेज आहे, इधर लिकेज हो रहा है, उधर लिकेज हो रहा है. मग आम्ही त्यांना इस्टिमेट तर बनवून दिलं सँक्शनसाठी. मॅडमने आम्हाला सँक्शन पण आणून दिलं. आणि सँक्शन झाल्यानंतर आम्ही मेन बिल्डिंग, एनआर बिल्डिंग, कॅन्टीन या सगळ्यांना याच्यावरती वॉटरप्रूफिंग करून घेतली. आता रिसेंटली मागच्या हफ्त्यातलीच गोष्ट आहे, आम्ही बॅडमिंटन कोर्टवरती नेहमी लिकेज असायचं. त्याच्यावर जे सिमेंट शीट्स होते ते चेंज करून आम्ही त्याच्यावरती आता GI शीट लावले. यावर्षी तो पण प्रॉब्लेम नसेल आपल्याला लिकेजचा. आणि लायब्ररी बिल्डिंग मध्ये आता रिसेंटली या 2 हफ्त्यामध्ये आम्ही वॉटरप्रूफिंगचं परत काम चालू करू, की ते एकच बिल्डिंग आहे जिला वॉटरप्रूफिंग नाही आपल्याकडे आता. हे सर्व काम मला इकडे करायला भेटलं. त्याच्यात एक प्लस मी सांगायचं विसरलो, एम्पावर हे रूम जे बनवलंय, एम्पावरचं जे केबिन, याच्यामध्ये खूप साऱ्या छोट्या छोट्या गोष्टी होत्या. फ्लोरिंग असेल, लॅमिनेट असतील, विनाईल फ्लोरिंग असेल, पार्टिशन्स असतील, या सगळ्या गोष्टी तिथे जे काम करताना त्यांची लेवल लाईन याची किती बारीक याच्याने आपण चेकिंग केली पाहिजे हे मला त्या एम्पावरच्या केबिन मध्ये शिकायला भेटलं. प्लस बिर्ला स्कूलला आम्ही एक साऊंड प्रूफ रूम बनवलेला आहे. त्या साऊंड प्रूफ रूमचं एक विशेषता अशी होती का त्याच्यामध्ये 14 वेगवेगळ्या कॉन्ट्रॅक्टरांनी काम केलेलं आहे ते साऊंड प्रूफ रूम मध्ये. मला आजपर्यंत एवढे छोट्याशा रूम मध्ये म्हणजे 10 बाय 10चा रूम आहे, पण त्या 10 बाय 10च्या रूम मध्ये ना 14 वेगवेगळ्या वेंडरनी सिव्हिलच्या अंडरमध्ये काम केलं होतं. म्हणजे मी ही गोष्ट कधी विसरू शकत नाही का सिव्हिल डिपार्टमेंट किती मोठे काय, 14 वेंडर लागले वेगवेगळे काम करणारे. हा एम्पावरचा एक हे असणार, साऊंड प्रूफ रूमचा एक असणार. प्लस आपण आता बाबूजींचं जे बसचं इनॉग्रेशन केलं ते पण एक मोठं टास्क होतं आमच्यासाठी. का बससाठी आम्ही जे त्याचं जे राऊंड बनवलंय त्याच्यासाठी जे छोट्या छोट्या 4-4 इंचाचे ग्रेनाइट कापलेत, त्याचे 1100 तुकडे आम्ही बनवले होते ग्रेनाइट त्याच्यामध्ये लावण्यासाठी. का की कर्वेचर मध्ये ग्रेनाइट कसं लावायचं कोणाला समजत नव्हतं. मग समीर सरनी गायडन्स दिलं, त्या हिशोबाने आम्ही त्याचे 4-4 इंचाचे तुकडे करून असे 1100 तुकडे आम्ही बनवले 3 दिवसामध्ये आणि ते याच्यात लावलेले आहेत बसच्या याच्यामध्ये. हा पण एक टास्क होता आमच्यासाठी का कसं करायचं ते. हे सगळ्या कॉलेजमध्ये सगळ्या गोष्टी झालेल्या आहेत आणि अजून याच्यापेक्षा जास्त डेव्हलपमेंट होतील. मी एक छोटीशी गोष्ट सांगेल फक्त, माझी ताई वगैरे सगळे बिर्ला कॉलेजमध्ये शिकलेले आहेत, माझ्यापेक्षा मोठे आहेत ते लोक. तर ते मला कधी पण म्हणतात का आम्ही जेव्हा बिर्ला कॉलेजला होतो ते बिर्ला कॉलेज आणि आता रिसेंटली ते लॉकडाऊनच्या नंतर एकदा कॉलेज झालं, ते बोलतात आताचं आणि तेव्हाचं बिर्ला कॉलेज खूप वेगळं आहे. अजून एक गोष्ट सांगायची, समीर सर कधी पण एक गोष्ट बोलतात का सिव्हिल इंजिनियरची लाईफ अशी आहे का तो दिवसभर उन्हात उभा असतो, पाऊस पडत असेल तरी तो पावसात उभा असतो, पण त्याला लाईफ मध्ये एक गोष्ट सांगता येते का ही गोष्ट मी बनवलेली. तर मला ही खूप गोष्ट अभिमान वाटते का मी माझ्या घरातल्या माणसांना, मित्रांना, नाहीतर जे पण कॉलेजचे लोक आहेत त्यांना मला ही गोष्ट सांगता येते का पार्किंग मी बनवलेली आहे, एनआर एक्सटेन्शन मी बनवली आहे, प्ले स्कूल मी बनवलेली. ही गोष्ट सांगताना मला खूप अभिमान वाटतो का ही गोष्ट मी केलेली म्हणून. आपलं कॉलेजमध्ये जसे सगळे कल्चर, इन्फ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड नाही तर शैक्षणिक याच्याबरोबर आपलं कॉलेज शिक्षणाच्या मध्ये तर आहेच, शिक्षणाच्या मध्ये तर टॉप नंबरला आहेत. प्लस त्याच्यामध्ये आध्यात्मिक गोष्ट पण आहे. आपले एवढे सारे मुंबईमध्ये बरेचसे कॉलेज असतील, पण आषाढीची जी वारी असते, मी आध्यात्मिक आध्यात्मिक मार्गाचा असल्यामुळे मला खूप अभिमान वाटतो का आपल्या याच्यामध्ये आषाढीची जी वारी असते, सगळे वारकरी पंढरपूरला, मी स्वतः पंढरपूरला होतो, मग माझे आई वडील तिकडे येऊ शकत नाही, त्यांना एवढं 12-15 दिवस त्यांना यायला नाही भेटत. त्यांच्यासाठी बिर्ला कॉलेजमधले जी दिंडी निघते बिर्ला मंदिर परत, त्यांच्यासाठी तीच वारी असते. ते पूर्ण त्या 14 दिवसांच्या वारीची मजा ते एका दिवसात आपल्या बिर्ला कॉलेजच्या याच्यामध्ये दिंडीमध्ये घेऊन घेतात. म्हणजे ही गोष्ट खूप चांगली. एवढं बोलून मी थांबतो. मी आभार मला सगळ्यांचा व्यक्त करायचं, प्रिन्सिपल सरांचा असेल, डायरेक्टर सरांचा असेल, नीतू मॅमचा असेल, शिप्रा मॅमचा असेल, मैथिली मॅमचा असेल,
चाको सर असतील, ताळके सर असतील, खामकर सर असतील, जे आपल्यामध्ये आता नाही आहेत, रिटायर होऊन गेले, त्यांच्याकडे खामकर सरांची आणि माझी 2-2 मिनिटाला कधी पण भांडण व्हायची, पण तरी पण संध्याकाळी 5 वाजता परत आम्ही दोघं एकमेकांशी बोलायचो. आता पण चाकू सर, तारके सरांची होते, पण 5-5:30 वाजता आम्ही परत एकमेकांशी व्यवस्थित बोलतो. राहुल सर असतील, बिर्ला स्कूलमध्ये ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह डिपार्टमेंट बघतात, त्यांच्याकडे पण त्यांना पण रिपोर्टिंग आहे. परत राहुल चेटिया सर असतील सेंच्युरियन मधले, राजा सेन सर असतील, हिमांशु अगरवाल सर असणार, यांच्याकडे पण हिमांशु अगरवाल सरांकडे पण मला भरपूर साऱ्या गोष्टी शिकायला भेटल्यात. ते जेव्हा साईडवरती यायचे तर त्यांचं ऑब्झर्वेशन असायचं कुठल्याही गोष्टीला, ते मला त्यांच्याकडे शिकायला भेटलं का ते कसं विजन करतात एखाद्या प्रोजेक्टला. सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे सिव्हिल डिपार्टमेंटमध्ये काम करतो आपण, तर त्यांना पैसे प्रत्येक वेळा लागतात. तर आपलं बिर्ला कॉलेजचं केसीएसचं जे अकाउंट बघतात, अमोल बंडे सर, जहांगीर सर याच्या आधी होते. जहांगीर सर खूप चांगली व्यक्ती होती, त्यांच्याकडे बिल आपण कसं चेक केलं पाहिजे का मेजरमेंट कसे काय चेक केलं पाहिजे, हे मला त्यांच्याकडे जहांगीर सरांकडे शिकायला भेटलं. खूप चांगलं करणे. स्वप्ना मॅडम असतील, भावेश टँक सर असतील, अजून माझे जे कलिग्स आहेत, शुभम डांगे असेल IT डिपार्टमेंटमध्ये, कधी मला पण त्याची गरज लागते, त्याला पण माझी गरज लागते कधी ना कधी. आणि सेंच्युरियन मधले सुनील राव सर असतील, समीर सर असतील, राहुल चेटिया सर असतील, परचेस डिपार्टमेंट असेल सेंच्युरियनचं, यांच्या सगळ्यांचा मी आभार व्यक्त करतो. माझ्या आई वडिलांनी मला इथपर्यंत पोहोचवलं, त्यांचा पण मी आभार व्यक्त करतो. आणि हा परमेश्वर मला जो साथ देतोय प्रत्येक गोष्ट श्वास घेण्यासाठी व तुमच्या समोर बोलण्यासाठी, त्याचा पण मी आभार व्यक्त करतो आणि थांबतो इथे. नमस्कार. एक्सलंट एक्सप्रेशन योगेश, आणि खूप छान बोलला तू आणि सगळ्यांना आभार पण व्यक्त केला. एक खूप चांगली गोष्ट आहे. आणि जे काही तू म्हणतोय की आध्यात्मिक ह्याच्याशी जुळलेलं आहे, ते तुझ्या वागण्यावरनं किंवा तुझ्या बोलण्यावरनं सुद्धा दिसून येतं. सो अशाच मेहनत करत राहा, खूप चांगल्या ह्याच्यावर जाशील. आणि या तिघांचंही मी म्हणजे सुरुवातीला जास्त बोललो नाही, पण एवढंच बोलतो की these two army persons, they are very important because when we go to our courses we know their importance. PTI से तो एक्चुअली एडमिरल जनरल भी डरते हैं, बिकॉज PTI का जो क्लियरेंस होता है वो उनके फिटनेस के लिए भी होता है. सो दे आर सो इम्पोर्टेंट, दे हैव वर्कड एट सच अ लेवल, and but here at BK Birla College they are very familiar, they are very ground to earth. They never show that they are from army, they do not show that they are so disciplined and they would like to have in this particular fashion only. They are flexible. So that is what we have seen. And even Yogesh, we can see Yogesh तसं बघायला असं वाटत नाही की हा सिव्हिल इंजिनियर आहे, आपल्याला असंच विद्यार्थी असेल कुठेतरी वाटतो, पण आताच आपण त्याच्याबद्दल ऐकलं की त्यांनी सिव्हिल इंजिनिअरिंग पण केली आहे आणि खूप चांगलं काम करतोय. तर मी तिघांना खूप खूप आभार व्यक्त करतो की तुम्ही तिघांनी चांगलं एक्सप्रेशन दिलं. आता if anybody want to express, we will invite, otherwise we will request our director sir to please speak on this occasion. मैंने पहले भी बोला था, बट मैं फिर बोलना चाहूंगी. और चालके साहब, चाको साहब और योगेश, आपका एक्सप्रेशन बहुत ही अच्छा था. चालके साहब के बारे में पहले बोलूंगी, आपकी इतनी लंबी आर्मी सर्विस के बारे में सुन के बहुत अच्छा लगा. सब लोग आपको जानते होंगे, बट आपकी पूरी जर्नी के बारे में सुन के बहुत ही अच्छा लगा. 32 इयर्स आर्मी में बहुत लंबे होते हैं. एंड उसके बाद भी आपने सेंचुरियन में 10 साल काम किया ऑलमोस्ट. एंड उसके बाद भी आपको ऑर्गेनाइजेशन छोड़ना नहीं चाहती थी. ब्रिगेडियर थॉमस चाहते थे कि आप किसी न किसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन से साथ रहो, तो आपको बीके बिरला कॉलेज के लिए रेकमेंड किया. ये आपके बारे में मतलब इट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट योर प्रोफेशनलिज्म. बिकॉज जब कोई इतना हार्डवर्किंग होता है, अच्छा काम करता है, तभी उनको खोना नहीं चाहते लोग, चाहते हैं कि उनके लिए काम करते रहे. सो थैंक यू, आपका बहुत ही अच्छा एक्सप्रेशन था. चाको साहब, अगेन 26 साल फौज में रहे आप, एंड आपका मतलब यू आर अ डिसिप्लिन्ड पर्सन, बहुत ही डिसिप्लिन्ड है. और आई थिंक ये सौभाग्य है कॉलेज का कि आप उनके लिए काम कर रहे हैं. आप बहुत ही डेडिकेटेड वे में काम करते हैं चाको साहब. और जैसे आपने बताया, आपने जितने प्रोजेक्ट्स जब से आप आए हैं, मैंने देखा है आप यू टेक इट एज योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये मुझे करना है. जो भी काम दिया जाता है आप ऐसे करते हैं जैसे कि वो आपकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं आप उसके लिए. फॉर एग्जाम्पल, जैसे फ्लैग्स बनाने हुए,
फ्लैग बनाना था, तो वो उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं। उन्होंने खुद ही वेंडर से बात करी पंजाब से, एंड ही इज रियली इन्वॉल्व बहुत। दिस इज अ बिग क्वालिटी अबाउट यू ठाकुर साहब। तो मैं मतलब मैं सबको बताना चाहती हूँ, आपको भी बताना चाहती हूँ कि बहुत अच्छी क्वालिटी है जिस तरीके से आप काम करते हैं, हर चीज में अपने पॉइंट्स भी लाने की कोशिश करते हैं, अपने आइडियाज देते हैं, तो जिससे इम्प्रूवमेंट आ सकता है। तो कीप अप द गुड जॉब एंड एक्सीलेंट। सो आई एम प्राउड ऑफ बोथ ऑफ यू, डायरेक्टली पार्ट ऑफ माय टीम। योगेश, मला मराठी येत नाही, बट मुझे मराठी समझ में आती है बिकॉज आई एम मैरिड टू अ महाराष्ट्रन। सो आई एम वेरी हैप्पी कि मैं आई कुड अंडरस्टैंड योर एंटायर स्पीच। और मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन के कि आपके अजूबा और बड़े दोनों के दोनों सेंचुरियन में थे। सो योर थर्ड जनरेशन एसोसिएटेड विद सेंचुरियन, एंड आप बहुत ही मेहनती हो। मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से आप अपने काम के बारे में बात कर रहे थे। यू आर पैशनेट अबाउट योर जॉब। जिस तरीके से आप अपने जॉब के बारे में क्या क्या आपने यहाँ पे करा है उसके बारे में जिस तरीके से बता रहे थे, बहुत अच्छा लगा। बिकॉज यू हैव टू बी प्राउड ऑफ व्हाट यू आर डूइंग, तभी आप अच्छा डिलीवर करते हैं। तो यस, आप अभी बहुत यंग हो, आपकी रिसेंटली शादी हुई है, तो इट्स गुड, कीप अप द हार्ड जॉब, अच्छे से काम करते रहो, सबसे मिलजुल के रहो। लाइक यू सेड कि खानकर साहब से भी कुछ कुछ होता था, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे आप सबसे यू वुड मेक अप विद एवरीबॉडी। सो यस, काम अपनी जगह है, और जहाँ पे मतलब जो रिक्वायर्ड होता है करना होता है, बट स्माइल करते रहे, ऐसे ही काम करें। बहुत अच्छा लगा, आप तीनों ही बहुत हार्ड वर्किंग हैं, एंड आपका एक्सप्रेशन बहुत ही अच्छा लगा आपकी जर्नी के बारे में सुन के, और जो जो आपका योगदान है कॉलेज की तरफ। थैंक यू सो मच। एंड आई एम वंस अगेन सेइंग कि आई कंसिडर माई सेल्फ, मैं आई एम ब्लेस्ड, मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि आप सबके साथ मुझे काम करने को मिलता है। बिकॉज क्या होता है कि काम बहुत सरल हो जाता है, बिकॉज जो भी काम आपको दिया जाता है आप उसको अपनी पूरी मेहनत से और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे लेते हैं एक्चुअली। तो इट्स वेरी, आई एम टोटली ब्लेस्ड, आई मस्ट से। एंड मैं आपको बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, एंड मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरे को आपके साथ काम करने का मौका मिला। एंड थैंक्स, आपका एक्सप्रेशन बहुत ही अच्छा था। थैंक यू सो मच। थैंक्स। थैंक यू मैम, योर वर्ड्स मीन अ लॉट फॉर देम, एंड बहुत अच्छे से आपने इन सभी का प्रेजेंटेशन किया, बहुत बड़ी बात है। एंड चालके साहब की जहां तक बात हो, तो मुझे भी याद है चालके साहब जब सेंचुरी से ब्रिगेड थॉमस सर भेजते थे, कई बार मेरे पास आते थे यहाँ बिरला कॉलेज ज्वाइन करने के पहले, तब भी। और बीच में ऐसी भी बात हुई थी कि शायद खामकर साहब को रिप्लेस करके चालके साहब को लाया जाएगा। चालके साहब से भी पहले से मुलाकात थी, और अभी हम लोग ने अपना जो प्रोग्राम किया था फ्लैग डे वाला, उसमें भी चालके साहब की बहुत बड़ी भूमिका रही। जिस तरह उन्होंने सभी एक्स सर्विसमैन एंड जो मेडल विनर्स थे सभी को कोऑर्डिनेट किया, इट वाज रियली कमेंडेबल, एंड वी आर थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। Anybody else, or we can request director sir to please. Yes, Madhu madam, please. Thank you. Is my voice is audible, sir? Yeah. Yes. सर, ऐसा होता है दिन भर जब आपने अपन काम करते हैं, उसके बाद जब घर जाते हैं तो आजू बाजू जब ग्रीनरी होती है तो देख के अपने बहुत सारे स्ट्रेस कम हो जाते हैं। सो आई रियली थैंक यू चाको सर एंड ऑल द टीम कि हमको मतलब जिसको हम बोल सकते हैं लेक्चर के साथ जब हम लोग बाहर आते हैं तो नेचर के साथ हम जब होते हैं तो हमारा स्ट्रेस कम हो जाता है, और इतना ब्यूटीफुल कैंपस हमेशा होता है। आई फील सो गुड इन दैट पार्ट। ये स्ट्रेस फ्री होने के लिए भी नेचर हमको हमेशा हेल्प करता है, और उसके लिए डेफिनेटली सारी टीम काम करती है। अबाउट द सिक्युरिटी, चालके सर, नो डाऊट बिर्लोत्सवमध्ये मी जेव्हा नाव घेतलं होतं तेव्हा चालके सर मला तुमचं नाव नव्हतं माहिती, स्वतःहून मी तुमच्याकडे आले होते की सर तुमचं प्लीज मला नाव सांगा। तर बिर्लोत्सवमध्ये मी तुम्हाला थँक्यू मध्ये म्हटलं होतं, वोट ऑफ थँक्स मध्ये। अबाउट योगेश सर, 100% दिन भर हम लोग बात नहीं करते, पर हमेशा जो स्माइल रहती है आते जाते की मॅम कसे आहात, जेवण झालं का? तो एक खूप छान एक तर आपल्या कॉलेजमध्ये आहे की आपण भलेही इथे फॅकल्टी असो, पण जेवढे जण आपल्या कॉलेजमध्ये त्यांच्याशी नेहमीच आपण हसत खेळत असतो, आणि ही गोष्ट खूप छान आहे। आजचा एक्सप्रेशन तिघांचा अतिशय सुंदर होता, आणि जस्ट कीप इट अप। थँक्यू सो मच फॉर एव्हरीथिंग। थँक्यू सर, थँक्स अ लॉट।
Dr. Swapna Samir. Yes, sir. We are waiting for you. Okay, I was getting disconnected in between. तीनों को चाय भी पिलानी है, हाँ हालांकि सर, सर्व की आती हूँ सर. I'll come. देखी थी. Yes. हेलो. 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 Yes, sir, you are audible. हाँ, लेकिन प्रोफेसर समेल स्पीकिंग. और अब बिल्डिंग बनाने वालों, और बिल्डिंग की रक्षा करने वालों, ये योगेश, खाली बिल्डिंग ही नहीं बनाते हो तुम, शिक्षण संस्था बना दी तो पता है क्या हुआ? पूरा देश बना दिया. जिन्होंने 72 साल में ईंट लगाई थी बिल्डिंग में, उनमें सिविल डिपार्टमेंट के लोग थे सेंचुरी के, और वो सालों साल ये बोले सर यहाँ ईंट हमने अपने हाथों से लगाई है. उस समय इतनी फैसिलिटी थोड़ी थी, गार्डन था ही नहीं, तो बोले 8 दिन के अंदर पूरा गार्डन बना दिया. अंदर मिट्टी खोद खोद के कुंडी ही अंदर रख दी प्लांट के साथ, और बोले कि लो तैयार है कॉलेज. और अभी भी जब कभी इस तरीके की चीजें होती है तो आप लोग वो कर देते हैं जो आदमी सोच भी नहीं पाए. इस बिरला कॉलेज को बनाने में आप सबका बहुत हाथ है. और you said your tie and all they have been student of BK बिरला कॉलेज. तो उस जमाने के विद्यार्थी और environment of that time was also very pious. अपन कितनी बड़ा आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, मशीन ते मशीन. I was listening when Dr. नीतू थापलियाल was telling कि कोई मशीन है प्लांट में काम नहीं कर रही है गार्डन में, और बोले हम कर देंगे. तो जो खुद करने से मजा, दैट सेटिस्फेक्शन आता है, मशीन से करने में सेटिस्फेक्शन नहीं आता. और जब ये बोल रहा था योगे अपना मिस्टर योगेश, मी हे बांधला दहा बाय 10चा साऊंड प्रूफ रूम बांधला, इतके लोकांबरोबर काम केला. 16 पार्ट केले की 17 केले, छोटे छोटे आणि जोडून
बाबूजीची प्रतिमामध्ये, all was reflecting his emotional involvement with the system. And जेव्हा इमोशन असतात तेव्हा कामाची क्वालिटी, कामाची प्रगती फार वेगळी असते. So I would like to thank Mr. Chapo, Mr. Chalke, and Mr. Yogesh तो क्या है, he is like a when he says ताई इकडे होती, हे होतं, तो हे आपल्याला असं वाटते he is like our son. And thank you so much, Mr. Chalke and Mr. Chapo. You are doing great service, great work, and it is so true. Chapo was telling that एक नहीं, ऐसे hundreds of people come and tell. जे पहले बिरला कॉलेजला येऊन गेले आहे, सर, then and now, बिरला कॉलेजची ग्रीनरी, बिरला कॉलेजमध्ये डिसिप्लिन, और वो क्या है, वन एंट्री काय ते, हालांकि काही लोक असे पण आहे त्यांना जरा चांगला वाटत नाही, बोला आम्हाला इतके बंधन हे, but all these things, when you grow, systems have to come, and it is always better for better administration, better setup, that we all fall in line with system. So when people say, they also feel very happy and we also feel very happy. So एक positivity, आणखी चांगली motivational positivity निर्माण होते. So very good, and I am sure you also must have felt, as you are पहले आतापर्यंत आम्ही कधी बोललोच नाही, आज पहिल्यांदा असा system मध्ये बोललो. It also speaks, together we make BK Birla College. Every person's role, every person's involvement and commitment, that makes BK Birla College what it is today. And it has been told that next 1 year, I think Dr. Harish Dubey was making a reference that we are all set to go for 4 cycle of NAM. तो मिलिट्री में बोलते हैं किसमें बोलते हैं, हाउ इज द जोश, वेयर इज मिस नीतू थापलियाल, इज शी देयर और नॉट? Yes, sir, I'm here, sir. I'm here. Neetu Thapliyal will sing few lines. And how's the josh? Hi, sir. क्या बोलते हैं, हाई सर. तो आपल्याला एक सेशन, because college will now start physically fully from 13, so one day we will have a session of all teaching, non-teaching, everyone. Only this, how's the Josh? Perfect कोणी नसतं. प्रत्येक, we may say, I can never say I know everything, and the one who says so is not true. We may be knowing less, but together we know more. And that togetherness, that collective knowledge, wisdom, we had to put together in the best possible way, and to see that during this 4th cycle, we shall do better than ever before. Thank you very much. And now Professor Samil is there, but before that, Ms. Neetu Thapliyal is here. Yes, Ms. Neetu Thapliyal. So, Student leader, you always fly in the sky. So what do you want me to do, sir? To sing a song. How's the Josh? He made high. Sir, मैं since how's the Josh क्या मतलब मैं हम फौजी हैं since, तो मैं बोलूंगी कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के. Come on, join me, Chalke साहब and बिल्कुल, चालके and चाको दोनों हैं यहाँ. ज्वाइन कराओगे. शुड बी ये क्या कोरस होता है, क्या होता है?
अब मुझे गाना वाना तो ज्यादा आता नहीं है, मैं तो सपना समील को खड़ा कर दूंगा भाई. So Josh is always high, sir, and together I think all of us can make things work, sir. Yes. Yes. So let's start, madam. Okay. Shall we? Yes. 1, 3. Starting. कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के डरते हैं. कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के क्या करते हैं? दिल दुश्मन के हिलते हैं. Very good. चलो thank you. Very good. Excellent. So Mrs. Neetu Thaplial, so very nice. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Nice. चलो thanks. क्या करना photo? yeah, photo एक बार. Group photo and Yeah, we request everyone to please put on the camera. Thank you everyone. So it was a nice session today, listening to all our three family members, Mr. Yogesh Kene, honorary captain, retired, Mr. Sakaram Chalke, and retired Subedar Gigi Chakoji. And we declare that today's expression is over. Tomorrow we shall meet at 4 o'clock evening. Thank you. and Thank you. before going, come for 2 minutes here. या तीनों जन यहाँ पे आइए, मैं आता हूँ. Yes, sir.